डिसरिस्पेक्टफुली कई लोग तो कमेंट्स कर रहे थे, बहुत रश हो गया था बाहर। मैंने अपने भाई का भी मेकअप किया। मैं इस पे पता है कौन सी रील बनाऊंगी आफ्टर पे, क्या कहूँ कि शर्म से है लब। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all doing? Today is the episode 2 of the wedding series and I have my laptop right in front of me जिसमें सारी फुटेज मैंने खोली हुई है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ आपको बताने के लिए। और मैं सेम मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ। मुझे एक एक प्रोडक्ट याद है उस दिन मैंने क्या यूज़ किया था और ये ऑफिशियली हमारा फर्स्ट फंक्शन था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सब कुछ जैसे रोका भी हमने सिंपल सा किया था तो हमें था कि रिंग सेरेमनी थोड़ा सा हम अच्छे लेवल का करेंगे एंड इट वॉज अ ग्रेट फंक्शन। बहुत मज़ा आया था ऑब्वियसली जैसे हर फंक्शन में आता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आई एम गोना शेयर विद यू वन PR बॉक्स दैट आई हैव रिसीव्ड। जो कमिंग वेडिंग सीजन है, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट द Plum Loving Body Loving range because they are amazing. And look at this cute PR bag. This is the cutest PR that I've received in such a long time. Just look at this, the colorful and everything. And Minions are always so cute and they have collaborated with Minions new movie that is The Rising Gru and it looks so cute. Right now the products that they have inside are even क्यूटर एंड बेटर। सबसे पहले तो आप इसको जब खोलते हैं ना, सिर्फ आपको एक ही चीज़ ये रिमाइंड करवाता है, वो है बनानास। इस रेंज का नाम भी बहुत क्यूट है, मिनियंस गोइंग बनानास। सो आप देख सकते हो मैंने अभी तक पैकेज खोला नहीं है बिकॉज आई वाज लाइक आई नीड टू शेयर द पैकेज विद यू गाइज बिफोर ट्राइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। वी हैव वन सेकेंड, आई जस्ट कीप दिस हैवी बॉक्स राइट हियर एंड आई शो यू कि इसमें क्या क्या है। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इन दिस PR पैकेज इज दिस मिनियन गोइंग बनानास बॉडी वॉश and this looks really cute you guys. This is enriched with olive oil extract and also bananas that will make your skin plump and juicy and it will not let you dry. It smells really good and if you love bananas then you will love this range. Next we have this Minion Going Bananas body scrub and this is how it looks like. I've tried their the body scrubs from the Plum Body Loving range and I love them because the scrub particles are very gentle on your skin and it's not harsh at all. Let me smell this as well because it looks really yummy. Smells like banana. If you don't like bananas then you will not like this range because इसमें सिर्फ banana ही है. But if you like banana and if you want कि आप shower से बाहर निकल रहे हो and you should smell like a banana then you should get. We have this body yogurt which looks like this. आप देख सकते हो एकदम न्यू पैकेजिंग है, नया PR. I haven't even touched it. I just wanted to share it with you guys before opening any of this. So this is how it looks like. So cute, right? The packaging is so cute. अभी मैं इसको open करके देखती हूँ. Such a big tub और ये ख़त्म नहीं होगा आपके पूरे टाइम पे और ये सर्दियों में I feel बहुत काम आएगा क्योंकि सर्दियों में ड्राई हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा. This is also vegan and cruelty free. Also it is like a butter and it will absorb into your skin very quickly. And it's a very lightweight, cooling, hydrating formula. So I'm really excited to try all of these 3 products. I have also received something very cute. Look at this. This is a bag that I received in the package. I also have a very cute Minion notebook. Look, it's a white notebook. You can draw, you can write your to-do list, anything you can use it for. I'm so happy with this PR package. So I also have these fragrances from Plum. These are, this one is Trippin Mimosa and this one is Hawaiian Rumba. Vegan, cruelty free first of all, which is so good for your skin also. And it's so travel friendly, such a mini cute perfume. And you must have seen so many bloggers talking about this because this is really a good fragrance, the Hawaiian Rumba. And I'm just gonna spray it right now because why not? मीठी फ्रेग्रेंस है, आई लाइक इट. दिस इज़ लाइक परफेक्ट फॉर समर्स क्योंकि इसकी बहुत फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है. बट दिस वन इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, हवाईन रूम्बा. देन गो चेक आउट बनानास रेंज, Minion Going Bananas range. If you want to check all of these products out, you can click on the link in the description and use my code mentioned on the screen to get some money off on your purchase. Now let's begin. सबसे पहले तो रिंग सेरेमनी हमने कहाँ पे की थी? हमने की थी जन्नत पे and it was such a beautiful decor. इतना सुंदर, it was like a dream decor, you know, जिसको मतलब
मज़ा आ गया था देख के। इस पे हम इतनी सारी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। वहाँ पे एक हमारा सेल्फी कॉर्नर भी था। मैं आपको सब डेकोरेशन सब कुछ दिखा दूँगी हमारी कैसे हुई थी। इफ़ यू वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर योर वेडिंग और योर फंक्शंस। ऑब्वियसली खाना पीना आपको बता रही थी कि जैसे कि फंक्शन हुआ था तो हमारा बहुत ही सही था। और जो खाना पीना था, ओ माय गॉड यू गाइस, हमारे पंजाबियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खाना पीना, ठीक है। अगर आपको खाना नहीं पसंद आया, डेकोरेशन गई बाद में, अगर आपको खाना नहीं पसंद आया ना तो मतलब आपका फंक्शन फेल हो गया है, मतलब ठीक है। अगर लोगों को खाना नहीं पसंद आया तो जन्नत का खाना बहुत अच्छा था। मैं आपको थोड़ा सा खाने की स्निपेट्स भी दिखा दूँगी क्योंकि हैं अवेलेबल, मुझे दिखाई दे रहे हैं और मुझे भूख लग रहा है देखते ही सामने से। उसके बाद लड़के वाले पहले आए थे क्योंकि लड़के वालों का था बेसिकली, है ना, अरेंजमेंट सब कुछ। लड़के वालों की एंट्री बाद में हुई थी। तो घर पे क्या हो रहा था इस वक्त, हमारा एक दिन पहले मेहंदी मतलब सब लगा रहे थे, सबको शौक चढ़ा हुआ था हमारे भाई की शादी है, हमारे भाई की शादी है, तो हम सब मेहंदी लगा रहे बैठ गए। और जो हमने डीजे डूजे लगाया हुआ था, मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था चलो वेडिंग फंक्शंस स्टार्ट होने लगे। हमने मेहंदी लगाई और सब कुछ, शायद मेरे पास होगी पिक्चर्स वगैरह, वो मैं सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी। और मैंने मेकअप इस फंक्शन पे खुद ही किया था। मैंने शगुन पे और शादी पे मैंने बाहर से मेकअप कराया था, अदरवाइज मैंने खुद ही किया था हर जगह मेकअप अपना। घर पे जो हुआ मतलब मम्मा और मेरी बहन और मेरी मासी ने बाहर से मेकअप कराया था। अभी मैं प्राइमर लगा रही हूँ। मेरे मम्मा और मेरी बहन सब चले गए थे ऑलरेडी मतलब मेकअप कराने के लिए, और मैं थी घर पे। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी एक तरह से, क्योंकि घर पे उस टाइम हमारा फर्स्ट फंक्शन था और गेस्ट आ ही जा रहे थे और मैं घर पे थी और पापा थे, और पापा को था कि रिया घर पे है तो कोई भी काम होगा तो आई जस्ट आस्क हर टू डू इट। एंड मुझे था कि मुझे तैयार होना है कि, और मेरे साथ भाविका थी। भाविका इफ यू डोंट नो, वो मेरी मासी की बेटी है। एंड शी वाज लाइक आप भी मेरा मेकअप कर दो। क्या हुआ कि हम तैयार हो रहे थे और बीच में कोई आ गया था पता नहीं बाहर से। फिर मैं जैसे तैयार हो रही थी, बीच बीच में मुझे नीचे जाना पड़ रहा था अगर कोई काम आ रहा था, बट मैं खुद ही रेडी हो रही थी। तो हम तैयार होना स्टार्ट हो गए थे 4 बजे के करीब। हेयर स्टाइलिस्ट हमने बाहर से बुलाया था, जिसने बहुत ही वाहियात एक तरह से काम किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था वो हेयर स्टाइलिस्ट। वो हेयर स्टाइलिस्ट एक्चुअली से मम्मा और मेरी बहन ने मेकअप कराया था, उसी ने भेजा था हेयर स्टाइलिस्ट हमारे लिए। नहीं मतलब उसने अच्छा किया था काम, बट एनीवे घर पे तो यही सब चल रहा था कि तैयार होना है। और फिर मैंने भाविका का भी मेकअप किया था, ठीक है। उसके बाद हमारी एंट्री हुई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट लाइक आई एम ऑल्सो रिलीविंग द मोमेंट विद यू गाइज। सो उसके बाद हमारी एंट्री हुई लड़के वालों की, हमने ढोल लगानों के साथ एंट्री की थी। सबसे फनी बात यह है कि वहाँ पे ना जैसे ढोल वाले आते हैं ना, और वो मतलब अपनी वो बोलियाँ डाल रहे थे वो, तो वो मतलब जैसे जो आ रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑन स्क्रीन, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी जो बोली थी, तो उस पर जो जिसका जो नाम आ रहा था उसको डांस करना पड़ रहा था। तो जैसे नच्चे मुंडे दिया पहना, फिर पहनों को डांस करना था। तो इट वॉज रियली लाइक बहुत मज़ा आया था। आई थिंक हमने आधा घंटा एंट्री पे लगा दिया था अपनी, और फिर हम सभी से मिले थे। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर मीटिंग बहूज फैमिली प्रॉपरली। सभी हमें पता भी नहीं था अभी एक्चुअली सब कौन कौन है। तो फिर एंट्री हो गई, उसके बाद हम सीट पे जाके बैठ गए। मम्मा बहुत सुंदर लग रहे थे, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाद अक्षु के फ्रेंड्स वगैरह सब आ गए थे, मतलब हम सब बैठे अपनी अपनी जगह पे जाके। बाय द वे ये वाली आउटफिट मेरे को बहुत क्वेश्चन आए थे, ये मैंने ली थी रूप स्क्वायर से, घुमार मंडी में है। मैंने मोस्टली अपनी आउटफिट्स घुमार मंडी से ही ली। तो हम सेटल हो गए वहाँ, बहुत रश हो गया था बाद में। लिटरली मैंने इतना रश मतलब ऐसे फंक्शन पे ऐसे मतलब नहीं देखा था, क्योंकि बहू की फैमिली से बहुत ज़्यादा लोग, मतलब उनकी फैमिली इतनी बड़ी थी ना, मतलब हम तो पंजाबी हैं ठीक है, दे आर लाइक इतने सारे लोग थे ना उनकी तरफ से। हमने बुलाए थे थोड़े गिने चुने लोग, मतलब कि, और ऊपर से कोरोना का टाइम था, हमें था कि ज़्यादा लोग नहीं बुलाने, और बहू के साइड से इतने लोग थे ना। एंड आई वाज लाइक ठीक है, मतलब एक टाइम में तो डांस फ्लोर पे ऐसे सब लड़ रहे थे कि नहीं हमें डांस करना है, हमें डांस करना है। उसके बाद होती है बहू रानी की एंट्री। तो बहू लग ही नहीं रही थी, बहू ऐसा लगा था कोई अप्सरा नारी हवा से उतर के ना ऐसे जमीन पे आ गई है ऐसे तो इतनी सुंदर कहाँ से तैयार हुए थे आप? इंदर कौर से। मेरे को इंदर कौर का मेकअप ऐसे भी अच्छा लगता है। अगर आप लुधियाना से हो तो आप डेफिनेटली करा सकते हो। आपको नहीं ना इतना अच्छा लगा था? मेरा थोड़ा केकी हो गया था, आई डोंट नो, बट पिक्चर्स में नहीं पता चलता यार, केकी थोड़ा होता ही है मेकअप, हर एक उसका होता है मेकअप थोड़ा केकी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था पर्सनली, इवन द हेयर डू बहुत सुंदर लग रहा था, हेयर डू आप पे सूट कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर हुई इस अप्सरा नारी की एंट्री हमारी लाइफ में।
और उस धरती पे। अगर आपको एसी की आवाज़ आ रही थी गाइस एंड आई एम सॉरी, अगर नहीं आ रही थी तो मेरी सॉरी वापस करो। मैंने बहुत सिंपल सा ये आई लुक किया था, आप देख सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शन वगैरह पे आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल लुक करो, दे लुक दीज काइंड ऑफ लुक्स बेटर। सो हुई अप्सरा नारी की एंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर एंट्री हुई, मैं आपको एंट्री सब दिखा रही हूँ अभी स्क्रीन पे, ठीक है ना। हाँ, मेरे भाई की तो खुशी मतलब उससे टिका ही नहीं हो रही थी खुशी, इन दोनों से एक्चुअली नहीं हो रही थी। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी एक्चुअल में एंगेजमेंट हो रही है ना। इन दोनों ने अपनी पिक्चर्स खिंचवाई जो रिलेटिव्स के साथ, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसे लोग खिंचवाते पिक्चर्स यार, कहाँ रखनी है तुमने वो पिक्चर्स, इससे तो तुम अपना इंजॉय कर लेते। फिर इन्होंने अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचाई, जिसमें मुझे लगता है आधे से ज़्यादा फंक्शन उसी में निकल गया था जब ये अपने रिलेटिव्स के साथ सब पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। क्योंकि मैं तो अपने किसी भी फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं करने वाली यार। क्या आपके भी ऐसे होते हैं फंक्शन भी कि दूल्हा को इधर बिठा दिया, दुल्हन को इधर बिठा दिया और फिर रिश्तेदार आके पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं? मैं तो ऐसे नहीं कराने वाली हूँ, मैं ऐसे पहले कह रही हूँ। मुझे कोई शगुन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे साथ पिक्चर्स खिंचवाओ, मेरे डांस फ्लोर पे खिंचवाओ, गेम्स खेल के खिंचवाओ पिक्चर्स। उसके बाद इन्होंने आधे से ज़्यादा फंक्शन में किया ये सब, और फिर आया टाइम वो मैजिकल मोमेंट का, एक्सचेंजिंग द रिंग्स। राइट, इन दोनों की रिंग्स इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, और इतने सुंदर ऐसे लगा था जैसे वो हम किसी को शो पीस गिफ्ट करते हैं और उसमें एक ऐसे लड़का और एक लड़की ऐसे खड़े के ऐसे डांस करते हैं ना, कुछ ऐसे होता है, वैसे लग रहे थे ये दोनों, इतने सुंदर। आपका गाउन इतना बड़ा सा ऐसे गाउन था, बॉल गाउन टाइप। अभी मैं लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ, मैं लैश ग्लू से ही लगा लेती हूँ मोस्टली ग्लिटर्स वगैरह। तो मैं ग्लिटर लगाने के बाद आपसे बाकी का शेयर करूँगी। इसके लिए थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन करनी पड़ती है, होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड। तो जो मैंने ग्लिटर यूज़ किया था, मैंने जो ग्लिटर यूज़ किया था वो था स्टारडस्ट बाय फॉरएवर 52 एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ग्लिटर। अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी ना, आपको अपना पता चलेगा कितना सुंदर रिफ्लेक्शन है इसका। लुक एट दैट। बट इसका ना एक ब्लैक कलर का भी आता है, वो इतना अच्छा नहीं है, लाइक द गोल्डन इज बेटर। पता नहीं इनके अलग अलग ही हैं सभी के, बट ये वाला तो बहुत ही प्रिटी है, उसमें दिखाई दे रहा है। तो जो भी आपके फेस पे गिरता है ग्लिटर, उसको आप डस्ट ऑफ कर दो, क्योंकि बीच बीच में शाइन करता है ज़्यादा, मतलब वो वाला नहीं है। तो इस शेड का नाम है गोल्ड गॉबल। मैं सेकंड दूसरी आई पे भी ग्लू लगा रही हूँ। और मुंह पे भी गिर गया इतना सारा। उस दिन भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, फिर मैंने टेप से उतारा था प्रॉपरली। ओह माय गॉड, जब इन्होंने रिंग्स एक्सचेंज की थी ना, उन्होंने नीचे से ऐसे पूरा क्या बोलते हैं उसको, स्मोक था कुछ ऐसे, इतना सुंदर। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी। इट वॉज सो प्रिटी, इतना ड्रीमी सा लग रहा था ना, ऐसे लग रहा था दे आर स्टैंडिंग ऑन सम क्लाउड्स, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बहुत सुंदर लग रहा था। अभी मैं आईलाइनर लगा के आगे बात करती हूँ। एक बार आई मेकअप हो गया ना, फिर मैं आराम से बात कर सकती हूँ। वैसे भी थोड़ा सा ही फंक्शन रह गया है। तो आप ये बता सकते हो कि आपने अपनी ड्रेस बनवाई थी, राइट? तो मैंने अपनी ड्रेस वहाँ 1 हफ्ते में बनवाई थी। 1 हफ्ते में? यस। क्यों? बिकॉज मुझे एक प्रॉपर बॉल गाउन टाइप ड्रेस चाहिए, तो मेरे को सारे लुधियाना में कहीं नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने इसको स्टिच करवाया था, डिज़ाइन देकर उसको। फिर एक स्टूडियो है वहाँ पे, देनाली स्टूडियो। क्या नाम है? देनाली उनका इंस्टाग्राम हैंडल है मेरे पास। ओके। स्टूडियो है यहाँ पे पखवाल रोड पे। तो उन्होंने बनाया था मेरा 1 वीक के अंदर। 1 वीक में इतना सुंदर गाउन बनाना इज नॉट इजी। एंड मेरा फर्स्ट ट्रायल उस दिन था जिस दिन हमारा फंक्शन था। ओह माय गॉड, सीरियसली? आपने लेट क्यों वो किया, मतलब सिलेक्शन? बिकॉज पहले मैंने शगुन वाला डाला था ना उस पे। ओके, हाँ। ऑन द स्पॉट मैंने चेंज कर दिया प्लान, इसलिए मैं बनवाया था। तो ये थी स्टोरी ब्राइड के गाउन की। वेरी दुख भरी स्टोरी। वेरी हैप्पी जब उसने मुझे डिलीवर करा था। बहुत सुंदर लगा था। इवन द कलर्स वर रियली प्रीटी। द फैब्रिक्स वगैरह भी उन्होंने खुद ही चूज किए थे। फैब्रिक्स उसने मेरे को सैंपल्स दिखाए थे, चूज मैंने करा था। उसकी एम्ब्रॉयडरी भी मैंने चूज करी थी, डिजाइनिंग भी। ये आईलाइनर उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था और अब ये खत्म होने वाला है। द फॉरएवर 52 स्केच लाइनर।
ओके गाइस, सो आई पुट ऑन द लैशेज एंड लाइनर एंड मस्कारा। सो मस्कारा मैंने यूज़ किया था मैक का, और लैशेज मैंने इसे रैंडम के लाइलेस लैशेज यूज़ किए हैं। एंड यू गाइस, तो अब मैं एक्सेसरीज के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से ली थी। ये है जिया फैशन ज्वेलरी। ये वाला जो मैंने सेट लिया था, इसके साथ था नेकलेस, इयररिंग्स और मांग टीका। तो मैंने सिर्फ नेकलेस और मांग टीका लगाया था। बहुत लोगों को मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि इस लड़की ने अपने भाई की रिंग सेरेमनी पे इयररिंग्स क्यों नहीं डाले, कैसे नहीं डाले। और मुझे लोग मैसेज करे कम से कम इयररिंग्स तो डाल लेती। मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे नहीं डाला था। इतना हैवी मेरे भाई की रिंग सेरेमनी थी, सिर्फ मेरी शादी नहीं थी, तो मुझे कंट्रोल्ड ज्वेलरी पहननी थी, मिनिमल ज्वेलरी पहननी थी मुझे। और मुझे इतने मतलब लोगों ने कमेंट्स किया, अगर ज़्यादा हैवी इयररिंग हो तो हम नेक पीस नहीं डालते। मैंने तीनों चीज़ें डाल के देखी थी साथ में। मैंने खरीदा एक्चुअल में इसीलिए था कि मैं तीनों चीज़ें साथ में डाल लूँगी, बट वो नहीं सूट कर रहा था, वो बहुत ओवर लग रहा था, इसीलिए मैंने इयररिंग्स उतार दिए थे। ठीक है, और मुझे ठीक लगा तो समझ में नहीं आ। फिर हमने क्या किया कि सभी ने लड्डू वगैरह खिलाए ब्राइड एंड ग्रूम को, क्योंकि मुंह मीठा करते हैं हमारे यहाँ पे। और सभी का मतलब सभी जो रिश्तेदार होते हैं ऊपर आके स्टेज पे लड्डू खिलाते हैं, मुंह मीठा करते हैं और मोटा करते हैं ब्राइड और ग्रूम को। तो वो सब हुआ था। उसके बाद बीच में एक टाइम आया था जब बहू की एंट्री नहीं हुई थी। मैं और अक्षय बैठे हुए थे स्टेज पे। अक्षय कह रहा था कि अक्षय कहता कि मैं अकेला बैठा हूँ, इधर ही बैठी रहे। उसको इतना अकेला फील हो रहा था ना, क्योंकि वो स्टेज पे था और सभी उसको देख रहे थे। उसके बाद फिर इनका वही चलता रहा कि फोटोज खींच लेते हैं सभी, रिश्तेदार सब आ गए फिर से फोटोज खींचने। एंड फिर फाइनली, और डांस परफॉर्मेंस का मैं आपको बताऊं हमारे साथ क्या हुआ था। लिटरली दूल्हे की बहनों ने डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर रखी थी, एंड उस दिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि इतना रश था, तो हमने किया इन डांस परफॉर्मेंस। एंड पापा को भी बाद में लगा तुमने अगर प्रिपेयर किया था, तुमने डांस के, इवन जीजू ने भी प्रिपेयर किया था हमारे साथ। तो जीजू कह रहे थे कि मैं नहीं करूँगा, बहुत रश है और बहुत ऐसे मतलब वो है, तो हमारी कैंसिल हो गई थी परफॉर्मेंस बेसिकली। तो वही वाली परफॉर्मेंस हमने शगुन वाले दिन करी थी। शगुन की वीडियो भी जल्दी आपको दिखाऊंगी। बट उसके बाद ओके, ये सब हो गया, सब फोटोज खींच रहे थे, सब हो गया। एंड आफ्टर देन वाज द टाइम फॉर द एक्चुअल सेलिब्रेशन विच वॉज डांस। और डांस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पंजाबियों के फंक्शन में, क्योंकि गाने, पंजाबी गाने, वो सब। उसके बाद ब्राइड एंड ग्रूम को, और हम तो स्टेज से उतर ही नहीं रहे थे किसी भी फंक्शन पे, मोस्टली हम डांस ही कर रहे थे। शगुन पे बहुत जल्दी, चलो शगुन की बात आपको बाद में करूँगी। या इतना डांस किया अक्षय के फ्रेंड्स ने, मेरी फ्रेंड्स भी आई थी वहाँ पे, मेरी दो ही तो फ्रेंड्स हैं, 2 को बुलाया था, 2 आई थी, 3 आई थी एक्चुअली। उसके बाद हमने डांस किया। ठीक है, हम ब्राइड एंड ग्रूम को लेकर गए स्टेज से नीचे। हमने कहा छोड़ो तुम फोटोज, बहुत हो गया तुम्हारी फोटो। फिर हम इन दोनों को खींच के लेके गए थे नीचे। उसके बाद ऑलमोस्ट इट वॉज द एंड ऑफ द फंक्शन, बट उससे पहले हमने किया था केक कटिंग। यूजुअली हम नहीं करते हैं, बट कोई लेकर आया था ना केक, आई थिंक बनवाया था स्पेशली। ओके, तो बहू ने स्पेशली केक बनवाया था। बहुत ही प्रीटी, बहुत ही सुंदर केक था, वाइट एंड पिंक कलर का केक, बे स्टूडियो से। वो ऐसे ही होता है फंक्शन में, पता ही नहीं चलता कहाँ, क्योंकि ना वो डिनर उसमें लास्ट में लगा देते हैं और फिर वो स्वीडिश में ही सर्व हो जाता है एक तरह से, तो सब खा लेते हैं, एंड में बचता नहीं है। फाइनली जो हमारे मतलब क्या होता है डिनर, जो मतलब एक होता है ना कि सब रिश्तेदार, सब गेस्ट डिनर कर रहे हैं। एक होता है कि लड़के की फैमिली और लड़की की फैमिली पूरे टेबल ऐसे इकट्ठे करके ना, पंजाबियों में ऐसा होता है इकट्ठे टेबल डिनर करते हैं इकट्ठे, और वो लोग बहुत नाराज़ होते हैं जिनको वहाँ बैठने की चांस नहीं मिलती। तो ये तो होता ही होता है। उस टाइम पे पता नहीं क्या ऐसे होता है, जब आपके घर का फंक्शन होता है ना, आपसे खाया भी नहीं जाता ज़्यादा, ऐसा लगता है बस पेट भर गया। मैं कंसीलर लगा रही हूँ। क्या डिनर की भी फुटेज है? ओह गॉड, इसने कोई छोड़ी है? हमें खाते पीते भी सब फुटेज ले लिया, बट मैंने खाया तो था। तो सिर्फ जो क्लोज वाले रिश्तेदार होते हैं ना, वो बच गए थे। ने जो बैठ के बातें की वहाँ पे कितनी देर, अक्षय के फ्रेंड्स थे, हम थे, और भी रिश्तेदार थे, मतलब पास ही दूध वाले, और हमारे घर पे भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे, तो वो भी सब बैठे हुए थे। सो वी ऑल वर टॉकिंग थ्रू आउट द लाइक आई थिंक 2 आवर्स, 2 घंटे तक बैठ के बातें बुतें कर रहे थे। उसके बाद एक्चुअल में रिजॉर्ट वालों को, जो होटल वालों को धक्के मार के नहीं, मतलब बहुत लेट हो गया था, उनके वेटर्स को भी देख के हमें तरस आ रहा था, तो हमने कहा चलो अब घर ही चलते हैं। अक्षय की बात बताऊँ आपको,
कहता कि everybody. he was kissing, he was very happy because obviously, but kissing भी छोड़ो, वो नाराज हो गया था जब हम वापस आ रहे थे। कहता कि तुम लोग मेरे फंक्शन पे भी मुझे रुकने नहीं दे रहे। भाई वहाँ पे ख़त्म हो गया फंक्शन, सब चले गए हैं। वो कह रहा था कि नहीं मुझे मेरे दोस्तों के साथ रुकना है, ऐसे करके। फिर फाइनली हम सब घर आए। अक्षय भी घर चला गया, उसके दोस्त वहीं पे बैठे थे। उसके दो अक्षय घर आ गया, वो इसीलिए नाराज हुआ था एक्चुअली, क्योंकि उसके दोस्त वहाँ बैठे हुए थे एंड हम उसको ले आए थे। क्योंकि ऑब्वियसली यार इतनी देर तक कौन, मतलब क्यों बैठेगा कोई भी। तो बस फिर घर आके भी हम थोड़ी देर, हमारे रिश्तेदार आए हुए थे कुछ, तो हम सब ने बैठ के बातें बुतें की और फिर फाइनली सब जाके सो गए। अभी हम मेकअप पे फोकस करते हैं फटाफट। मेकअप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बताते बताते मुझे थोड़ा मेकअप पे फोकस नहीं कर पाई मैं। बट उस दिन मेरा मेकअप डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा हुआ था आज से, क्योंकि आज मैं बोल रही हूँ साथ साथ उस दिन मैं सिर्फ मेकअप पे फोकस करी थी। और मैंने अपने भाई का भी मेकअप किया था। आई थिंक रिंग सेरेमनी पे मैं उसका मेकअप कर नहीं पाई थी, थोड़ा ही किया था मैंने, ज़्यादा पता नहीं किया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। शगुन पे करा था, शगुन पे तो किया था, तभी उसकी फ़ोटो अच्छी आई थी। हाँ यार, मैं फ़र्क पड़ता है मेकअप से। ऑब्वियसली अब लड़की ने इतना मेकअप किया होगा और लड़का कुछ भी नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो डर ही लगेगा ना लड़की के सामने, क्योंकि लड़की तो इतना तैयार होकर आती हैं। तो अभी मैं फटाफट बेस को सेट कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतने पार्ट पे बेक करती हूँ, क्योंकि मेरी अंडर आइज पे क्रीज होने लग जाती हैं अदरवाइज। ये जो पाउडर मैंने यूज़ किया ये है फॉरएवर 52 का पाउडर। मैं थोड़ा चुप रहना चाहती थी, मेरा गला दुखने लग गया था इतना बोल बोल के। तो मैंने फॉरएवर 52 की पैलेट यूज़ किया है। आई लव दिस पैलेट। बस इसमें से हाइलाइटर नहीं यूज़ किया था। इसका ब्लश बहुत पिगमेंटेड है, तो ज़रा देख के परख के ही यूज़ करने का। बिफोर द हाइलाइटर आई ऑलवेज यूज़ मैक फिक्स प्लस। So let me know guys, आपको ये वेडिंग सीरीज कैसी लग रही है, like if you're liking the concept and everything, and if you want me to add something in these kind of videos. लास्ट टाइम मैंने Q&A ऐड किया था, इस बार मैंने बहू को ऐड किया जो पीछे से कमेंट्री कर रही थी बीच बीच में। Let me know in the comments and I use this MAC Soft and Gentle highlighter which is like अभी भी मेरा फेवरेट ही है, ये प्रीटी हाइलाइटर है। Now for the lipstick I'm gonna go ahead and use this Color Bar lip liner. टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मुझे लिपस्टिक इतनी कुछ याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है मैंने मोस्टली फॉरएवर 52 के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। एंड दिस इज़ अ फॉरएवर 52 लिप पेंट इन द शेड 709। इसके नंबर्स ही हैं। ये भी बहुत पिंकी सा कलर है और मैंने 2 शेड्स मिक्स किए थे एक्चुअली। सो यूज़ ये वाला मुझे पक्का याद है। एक मुझे याद है कि मैंने थोड़ा पिंकी सा यूज़ किया था और डेफिनेटली एक मैक का बर्न स्पाइस यूज़ किया था, और ये मैंने साथ में कैरी भी किया था। वो यू सेइंग कि ये दोबारा डालना पड़ेगा लिंक कॉपी करके। अगर मैं ये सिर्फ अकेला यही कलर यूज़ करती तो क्या हो जाता कि बहुत ही ब्राउन टोन देता, बट आई वांटेड कि पिंक और ब्राउन दोनों का मिक्सचर हो। सो आई वेंट विद बोथ द कलर्स ताकि थोड़ा सा पिंक अंडरटोन भी रहे। ऑलवेज लाइक टू retouch my blush once I'm done with my makeup. Love the way this makeup look turned out, really pretty. And hair do के लिए I just did a ponytail। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट इतना पसंद नहीं आया था, ये लगाया था बस, एक यही लगाया था। पता कौन सी रील बनाऊंगी आफ्टर पे, क्या कहूँ कि शर्म से है लब। Alright guys, so this is the makeup look। अभी मैं सब लहंगा वहंगा पहन के एक बार थोड़ा सा इधर उधर रील्स बना लूँगी फटाफट से। एंड let me know what you guys think of this look and this makeup।
what you guys think. Let me know in the comments. And what do you guys prefer, doing your own makeup on weddings and events and occasions and functions like this, or to get your makeup done from a makeup artist, or you know, something like that? Let me know in the comments. I'm just curious to know. And yes, I'll see you in my next video now. I hope you're enjoying the wedding series. अब मैं थोड़ा जल्दी डालूंगी क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है. अभी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं उसी टाइम शूट करके फिर एडिटर को भेज के फिर ही डालती हूँ वीडियो. बट आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो नाउ. बाय.